Good morning, students. Today's lecture is on phenols, in which you are going to learn about what are phenols, their nomenclature in common system and IUPAC system, and their methods of preparation. Phenols are aromatic alcohols in which hydroxy group is directly attached to benzene nucleus. Here, this is simplest aromatic alcohol in which hydroxy group is directly attached to benzene nucleus and is known as phenol. Phenols are further classified as monohydric, dihydric or polyhydric phenols depending upon the number of hydroxy group present. If single hydroxy group present in the molecule, then it is known as monohydric alcohol. If two hydroxy groups are present, then it is known as dihydric. If three or more hydroxy groups are present, then they are known as polyhydric phenols. Simplest monohydric alcohol is phenols. Aromatic alcohol is phenol. This is orthocresol, which is also monohydric alcohol, monohydric phenol, as it contains single hydroxy group. Now resorcinol is dihydric phenol as it contains two hydroxy group in the molecule, while pyroquinol is trihydric phenol because in this molecule of pyroquinol three hydroxy groups are present. Now, nomenclature of phenols. In common system, they are phenols are classified or named as derivatives of phenols. However, some phenols are also known by their common or trivial names. This is 2-methyl phenol, which is also known as orthocresol. 3-methyl phenol is known as metacresol. 1,2-dihydroxybenzene is known as catechol. 1,3-dihydroxybenzene is known as resorcinol, while 1,4-dihydroxybenzene is known as hydroquinone. Catechol, resorcinol, hydroquinone, metacresol or orthocresol are their common names. In IUPAC system, phenol is called as benzenol. However, IUPAC has adopted common name phenol in IUPAC system. So, derivatives of phenol, different phenols are named as derivatives of phenol. This is simplest phenol, which is called as benzenol. Others are their derivatives. So, 4-chlorophenol is also known as, in IUPAC system, it is also known as 4-chlorobenzenol, or you can also name it as 4-chlorophenol. This is 3-nitrophenol or 3-nitrobenzenol. Now fourth one is 3,5-dinitrophenol or 3,5-dinitrophenol. Benzene 1,2-diol is also known as pyrocatechol. Benzene 1,3-diol is also known as resorcinol. Pyrocatechol, resorcinol or hydroquinone are their common names as told earlier. Benzene 1,2,4-triol is known as hydroquinone, while benzene 1,3,5-triol is known as fluoroglucinol. The fluoroglucinol or hydroxyhydroquinone are their common names. Now, structure and bonding in phenols. In phenols, oxygen is sp3 hybridized while carbon is in sp2 hybridized state. Resonance takes place between lone pair of electrons on oxygen atom and benzene ring. यहाँ पे ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर हैं वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर लेंगे
विद बेंजीन न्यूक्लियस और फिनाइल न्यूक्लियस, जिसके कारण ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है और ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन के ऊपर रेजोनेंस के कारण क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। इस वजह से ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बॉन्ड्स को विड्रॉ करेगी टुवर्ड्स इटसेल्फ और ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, जिसके कारण जो फिनोल्स है उनका कैसा नेचर होता है, एसिडिक नेचर। सो इन फिनोल्स ऑक्सीजन इज इन sp3 hybridized state and carbon is in sp2 hybridized state. Resonance takes place between lone pair of electrons on oxygen and benzene nucleus, and due to this resonance, oxygen develops slightly positive charge. Now, different method of preparation of alcohol. First method of preparation is hydrolysis of diazonium salts. Diazonium salt is the simplest diazonium salt, which is also known as benzene diazonium chloride. Benzene diazonium chloride is itself prepared from aniline by reaction with nitrous acid, and nitrous acid itself is prepared in situ by reaction between HCl and sodium nitrite. So aniline on reaction with nitrous acid yield diazonium chloride, which on heating in presence of sulfuric acid gives phenol, that is diazonium group on benzene diazonium chloride is replaced by hydroxy group. तो जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हम बॉयल करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो जो N2Cl ग्रुप है यानी डाइजोनियम ग्रुप है वो रिप्लेस हो जाएगा किससे, हाइड्रोक्सी ग्रुप से, और N2Cl किस फॉर्म में रिलीज होगा, इन फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन गैस एंड HCl गैस। तो N2Cl का लॉस हो गया इन फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन एंड HCl, और हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच हो जाएगा किसके ऊपर, न्यूक्लियस के ऊपर, एरोमेटिक न्यूक्लियस के ऊपर, और हमें क्या मिलेगा, फिनोल। सो द फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल इज थ्रू डाइजोनियम साल्ट. When benzene diazonium salt is boiled with in presence of acid, then diazonium group is replaced by hydroxy group and we get phenols. Next method, an important method of preparation, is from cumene. Cumene is isopropyl benzene. When benzene is treated with propene in presence of phosphoric acid, it yields cumene. Cumene on aerial oxidation give cumene hydroperoxide. This cumene hydroperoxide on treatment with 10% acidic solution undergoes hydrolytic rearrangement to give phenol and acid. क्या है, बेंजीन जो है उसकी रिएक्शन कराएंगे प्रोपीन से H3PO4 की प्रेजेंस में, फॉस्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिलेगा, क्यूमीन। क्यूमीन की जब हम एरियल ऑक्सीडेशन करते हैं तब हमें क्या मिलता है, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड को जब हम बॉयल करते हैं 10% एसिड की प्रेजेंस में, तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगी, हाइड्रोलिटिक रीअरेंजमेंट होगी, और हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, फिनोल एंड एसिड। Now, what is the mechanism of this reaction? First of all, cumene is prepared from propene and benzene through Friedel-Crafts alkylation. Friedel-Crafts alkylation रिएक्शन के थ्रू हम क्यूमीन को प्रिपेयर करेंगे। इसके लिए हमारे रिएक्टेंट क्या होंगे, एक होगा प्रोपीन, प्रोपीन की रिएक्शन कराएंगे फॉस्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल कटायन की फॉर्म में। अब ये आइसोप्रोपाइल जो कार्बोकटायन बना, ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन शो करेगा बेंजीन इसके साथ, और हमें क्या मिलेगा, एंड प्रोडक्ट आइसोप्रोपाइल बेंजीन, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्यूमीन। और ये जो रिएक्शन है इसका नाम क्या है, जिस रिएक्शन के थ्रू हम क्यूमीन को प्रिपेयर करते हैं वो कहलाते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। Now, after Friedel-Crafts alkylation, cumene undergo
radical initiator abstract hydrogen from cumene to form cumyl radical. अब आपका ये क्यूमीन बन गया. क्यूमीन की फिर हमें क्या करानी है, एरियल ऑक्सीडेशन. एरियल ऑक्सीडेशन कैसे होगी, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है, चेन इनिशिएशन. चेन इनिशिएशन में जो रेडिकल है वो क्यूमीन से जो ये है बेंजाइलिक हाइड्रोजन, इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और क्या बना लेगा, क्यूमाइल रेडिकल. सो एब्स्ट्रैक्शन ऑफ बेंजाइलिक हाइड्रोजन from radical ion to form cumyl radical. Next step is chain propagation. Chain propagation step. In this step, cumyl radical undergo cumyl radical combines with biradical oxygen to form क्यूमीन हाइड्रोपरॉक्सी रेडिकल. ये हमारा क्या है, क्यूमाइल रेडिकल है. ये हमारा क्या है, ऑक्सीजन बाई रेडिकल, यानी एरियल ऑक्सीडेशन हो रही है. तो ये हमारा क्यूमाइल रेडिकल हो गया और ये हमारा क्या है, बाई रेडिकल ऑक्सीजन. ये आपस में रिएक्ट करके हमें क्या बनाए देंगे, क्यूमीन हाइड्रोपरॉक्सी रेडिकल. Now this cumene hydroxyperoxy radical abstract benzylic hydrogen from second molecule of cumene to form cumene hydroperoxide and cumyl radical. पहला क्या हुआ कि एरियल ऑक्सीडेशन में फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, चेन इनिशिएशन स्टेप, जिसमें क्या होगा, जो आपका क्यूमीन है वो रेडिकल इनिशिएटर के साथ रिएक्ट करेगा. रेडिकल इनिशिएटर क्या करेगा, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा फ्रॉम क्यूमीन टू गिव क्यूमाइल रेडिकल. अब ये क्यूमाइल रेडिकल किसके साथ रिएक्ट करेगा, बाई रेडिकल ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म क्यूमीन हाइड्रोपरॉक्सी रेडिकल. अब ये क्यूमीन हाइड्रोक्सी परॉक्सी रेडिकल जो है वो सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ क्यूमीन से क्या करेगा, बेंजाइलिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और क्या बनाएगा, क्यूमीन हाइड्रोपरॉक्साइड, और साथ में हमें क्या मिल जाएगा, क्यूमाइल रेडिकल. Now, next step is acid catalyzed rearrangement of cumene hydroperoxide to phenol. ये क्या होगी, एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन है. कौन सी रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगी, और जिसमें जो आपका क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड है वो डिकम्पोज होकर आपको क्या देगा, एसीटोन और फिनोल. इस रिएक्शन में क्या होगा, जो आपका क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड है ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा एसिड एब्स्ट्रैक्ट करेगा फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड, और ये जो आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो प्रोटोनेटेड हो जाएगा. इस प्रोटोनेशन के कारण क्या हो जाएगा, वाटर OH2 पॉजिटिव बनेगा, जो बेटर लिविंग ग्रुप है कंपेयर टू OH सिंपल OH, यानी OH से ज्यादा बेटर लिविंग ग्रुप कौन सा होता है, वाटर. तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, प्रोटोनेशन ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑफ क्यूमीन पेरोक्साइड, जिसकी वजह से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल में, जो क्या है, एक बेटर लिविंग ग्रुप है. अब इससे क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, माइग्रेशन होगा फिनाइल का फ्रॉम कार्बन टू ऑक्सीजन, और उससे एक आपको कार्बोकैटायन, नया कार्बोकैटायन मिलेगा जो बेटर रेजोनेंस स्टेबलाइजर. नेक्स्ट इज माइग्रेशन ऑफ फिनाइल ग्रुप फ्रॉम कार्बन टू ऑक्सीजन. यहां से क्या हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा, नया कार्बोकैटायन बनेगा जो बेटर रेजोनेंस स्टेबलाइजर. अब इस पे अटैक होगा फिर वाटर मॉलिक्यूल का, और ये हमें क्या मिलेगा, प्रोटोनेटेड एसिड. नाउ फ्रॉम दिस प्रोटोनेटेड एसिटल, और दिस प्रोटोनेटेड एसिटल undergoes decomposition to give acetone and phenol. ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, जो आपका क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड है इस पे एसिड का अटैक होगा. इस एसिड अटैक से जो OH पुअर लिविंग ग्रुप था वो वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा जो बेटर लिविंग ग्रुप है. फिर माइग्रेशन होगा फिनाइल ग्रुप का फ्रॉम कार्बन टू
ऑक्सीजन और हमें नया कार्बोकैटायन मिलेगा जो बेटर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। अब इस पे फिर हाइड्रोलिसिस होगी यानी वाटर मॉलिक्यूल का अटैक होगा और हमें क्या मिलेगा, प्रोटोनेटेड एसिटल. Now this protonated acetal undergo hydrolysis to form or undergo decomposition to form acetone and phenol. ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये H एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड शिफ्ट होगा बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन और यहाँ से फिनोल का लॉस हो जाएगा. तो डिकम्पोजिशन ऑफ this protonated acetal yield acetone and phenol. This is the mechanism of preparation of phenols from cumene. This is an important method of preparation. Next is preparation of phenols from sulfonates. ये है सोडियम बेंजीन सल्फोनेट. जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से एट हाई टेम्परेचर तो यहाँ से सोडियम सल्फाइड का Na2SO3 का लॉस हो जाएगा और आपको मिलेगा सोडियम फिनॉक्साइड. और जब हम इसमें मिनरल एसिड डाल देंगे यानी HCl की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फिनोल. सो alkali fusion of sulfonates yield phenols. Next method is from aryl halides जिसको हम बोलते हैं डॉस प्रोसेस और ये आपने डिटेल में स्टडी किया था aryl halide चैप्टर. aryl halides जो होते हैं ये लेस रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ये आपको डिटेल में बताया था अराइल हैलाइड के चैप्टर में. तो जब हम इस अराइल हैलाइड में Cl को रिप्लेस करना है हमें OH से तो हमें टेम्परेचर भी बहुत हाई चाहिए और प्रेशर भी बहुत हाई चाहिए. सो ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन क्लोराइड या क्लोरोबेंजीन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर यील्ड सोडियम फिनॉक्साइड विच on treatment with mineral acid like HCl yield phenol. तो दो प्रोसेस से भी हम किसको, फिनोल को बना सकते हैं, लेकिन इस प्रोसेस के लिए हमें टेम्परेचर भी बहुत हाई चाहिए और प्रेशर भी हाई चाहिए क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच नहीं है उस केस में जो न्यूक्लियोफाइल हैलोजन है उसको रिप्लेस करना विद अदर न्यूक्लियोफाइल वो क्या होता है, डिफिकल्ट. Next method of preparation is preparation of phenols from phenolic acid. Phenolic acid कौन सा हो गया, ये हो गया सोडियम सैलिसिलेट, सोडियम साल्ट ऑफ सैलिसिलेट, सैलिसिलिक एसिड. जब हम इसकी डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन करेंगे विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड तो सोडियम कार्बोनेट का लॉस हो जाएगा यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप का लॉस हो जाएगा इन फॉर्म ऑफ Na2CO3 और आपको क्या मिलेगी, फिन. And last method of preparation is from Grignard reagent. Grignard reagent किसके होते हैं, RMGX ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड्स जिसमें मैग्नीशियम जो है डायरेक्टली अटैच्ड होगा किसके साथ, कार्बन के साथ, यह है ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड. तो जब हम ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड यानी फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन कराएंगे ऑक्सीजन के साथ तो ऑक्सीजन इनकॉर्पोरेट हो जाएगा बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन एंड मैग्नीशियम और हमें मिलेगा फिनाइल OMgR और जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, फिनोल. तो ये थे डिफरेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.